quality, price, delivery time, then after sales service and Okay. purchase capacity. So you are giving for the session case number 1. Yes. And all of you please pay attention because I am going to ask everyone for a different group. So please repeat it once again. दोबारा से repeat करो एक बार. Quality, price, delivery time, after sales service and purchase capacity. Okay, very good, very good. And your group? अपने प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट, प्रोडक्ट का different. यूएसपी क्या है? ओके. And टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस, टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस. ओके. देन ऑलरेडी बाकी प्रोडक्ट जो कंपनी के प्रोडक्ट कस्टमर यूज कर रहे हैं उसका पेन एरिया क्या है, तो वो पेन एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं क्या, Okay. वो एक एनालिसिस उसमें होगा. तो बाकी कॉमन क्वालिटी, प्राइस और Common quality price. Okay, very good. Situation number 3. For third situation, your answer, your group, any one of you. Third situation, investment in China. पड़ता. क्या? That is one. Maybe a daily report. Daily report. कि कितना, I mean, what is the purchase? What are the sales figures? What are the internal cost figures? Like Okay. internal cost में सब कुछ आ जाएगा. Right. कुछ expansion के लिए हो या कुछ office expenses हो. Third thing and the fourth thing, what are the new inquiries or inquiries in pipeline? Okay. अगर inquiries ही नहीं तो मतलब ही नहीं होता. Right. Okay. Very good. Very good. And situation number 4. Anyone from your group? Market demand. Market demand. Okay. What else? Companies receivables. Companies receivables. Very good. What else? New inquiry. New inquiries. Okay. Very good. What else? And sales status. Sales status. What else? Okay. Very good. The last situation. We'll look at assets first and EBT. EBT. Okay. Very good. Okay. Very good. Very nice. And to see top line Top line. and EAT. EAT. Okay. Very nice. Any situation that you like from your group? Overall growth है कि नहीं, that will check all the parameters. Overall growth है कि नहीं है? Very good. So you will do the analysis of. Overall. Very good. What else? What else? Top line, bottom line, product quality, customer satisfaction. Customer satisfaction. Okay, very good. Please join your hands and give a big round to everyone. Very good. See now, अगर ये पांचों कंपनी में से मुझे पूरा भरोसा है आपने महसूस किया होगा कि सबके आंसर सेम ही हैं. Isn't it? सिचुएशन डिफरेंट है लेकिन सबके आंसर सेम ही हैं. तो अगर किसी कंपनी का आपको इवैल्यूएशन करना हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी. Isn't it? अगर आपको कोई कंपनी खरीदना हो, let's say for example tomorrow you have to purchase a company, will you not be interested to should see कि भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? तो first thing that you look at is profitability. Secondly, what you look at is liquidity. And third thing, what you look at is efficiency. जरा सोचिए, आपके पास में बहुत सारा पैसा है, सरप्लस मनी है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो. नेचुरली आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहोगे जो कि जिसमें आप बिजनेस हो, राइट. तो आप म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहोगे, शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहोगे क्योंकि शेयर मार्केट को भरोसा नहीं है, उल्टा सीधा हो सकता है. तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि चलो एक कंपनी है, चाकन में एक कंपनी अवेलेबल है, इस कंपनी को खरीद लेते हैं. ठीक है, इस कंपनी को खरीद के इसमें पैसा लगा देते हैं. तो बिफोर आप ये जजमेंट पे पहुंचो क्या ये कंपनी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे करोगे आप? कुछ तो देखोगे. तो क्या देखोगे आप? पहले उसकी देखोगे
प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, फिर आप देखोगे उसकी लिक्विडिटी कैसी है, और फिर आप देखोगे उसकी एफिशिएंसी कैसी है, मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है जो उसका कितना एफिशिएंसी है। सबसे पहले रिस्क हाँ, तो ये सारे अगर आप करोगे, ये जो आप एनालिसिस कर रहे हो वो रिस्क फैक्टर के लिए ही है। मतलब आप प्रॉफिटेबिलिटी क्यों देख रहे हो, अगर एक कंपनी प्रॉफिटेबल है तो आपकी रिस्क कम हो गई, एक कंपनी एफिशिएंट है आपकी रिस्क कम हो गई, एक कंपनी लिक्विड है आपकी रिस्क। तो ये सारा जो आप कर रहे हो, एंड यू आर राइट, वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज जॉइन। ओके, हाउ डू यू लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी? So profitability you can see in many ways. Number one, you calculate something which is known as GP ratio. And I would like all of you, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कल अपने अपने जो बिजनेस में जाएं तो ये रेशियोज आपने कैलकुलेट करना चाहिए और आपको मालूम पड़ेगा कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है. So how do you calculate the gross profit ratio? Gross profit ratio is gross profit divided by sales into 100. ये यो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. तो आप ये अपनी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए. अब सवाल ये है कि आपको कैसे मालूम पड़े कि ये अच्छा है कि नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? एनीवन? आपके कल ऑफिस आपने अपनी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है कि अच्छा नहीं है? स्टैंडर्ड कितना निकालना पड़ेगा? दैट इज वेरी गुड वन. व्हाट इज? उसके दो तीन तरीके हैं. नंबर वन, आप 18-19 का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए और आप 17-18 का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए. तो 18-19 का ग्रॉस प्रॉफिट अगर 17% है और 17-18 का ग्रॉस प्रॉफिट अगर 15% है, इसका मतलब 18-19 में आपने अच्छा किया है, राइट? और अगर रिवर्स है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कंपनी में बजटिंग का सिस्टम है और अगर आपकी कंपनी में बजटिंग का सिस्टम नहीं है और आपकी कंपनी को अगर आगे लेके जाना है, तो कल से नहीं, आज से बजटिंग अपनी कंपनी में चालू करिए. मीनिंग व्हाट, कि आज जब आप घर पहुंचे, सोने से पहले एक कागज पर पूरा प्लान बनाइए कि 19-20, ये जो साल 19-20 का साल है, इस साल का मेरा सेल्स का क्या प्लान है, इस साल का मेरा प्रॉफिट का क्या प्लान है. आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर जो हाथ खड़ा कर सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं कि मैंने 19-20 में इतने लाख का प्रॉफिट कमाने का मेरा प्लान है? कितने लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं? वेरी गुड. सो अगर जो बाकी लोग हैं नहीं हैं, उन्होंने भी प्लान तैयार करना चाहिए. रिमेंबर, इज वेरी सिंपल. बजट क्या है? बजट है आपका रोड मैप. बजट आपको बताता है कि आपकी ये साल की यात्रा कैसी होने वाली है. और याद रखिए, अगर आपके पास में रोड मैप नहीं है तो आप अपने टारगेट पर नहीं पहुंचोगे. क्यों नहीं पहुंचोगे? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि कहां पहुंचना है. आप तो बस जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है. नहीं. सो बजट. सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास जिन्होंने हाथ ऊपर किया उन लोगों ने ये करना चाहिए, उन लोगों ने कल जाके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए कि 19-20 यानी करंट साल में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है और आपने जो बजट बनाया है उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है. समझो जो बजट बनाया उसके हिसाब से आपका ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए 12%, एक्चुअल में हो रहा है 14%. यू कैन गिव अ पैट ऑन योर बैक. लेकिन अगर उल्टा है, then you need to immediately analyze and find out what is going wrong where, right? Everybody does it. All the companies across the globe, साल स्टार्ट होने से पहले उनका बजट तैयार होता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स have to approve the budget before 1st April starts. By end of February or March, middle of March, budget is ready and given to everybody in the whole company. So you also start. So are you with me? So आप वो कर सकते हैं. तीसरा, अगर बाई चांस आप जो प्रोडक्ट बनाते, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी बैलेंस शीट एंड P&L आपके हाथ में है, तो यू कैन कैलकुलेट योर ग्रॉस प्रॉफिट. यू कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ योर कॉम्पिटिटर एंड कंपेयर.
कि कौन ज्यादा है कौन कम है. Are you all with me? So this is what you can do. Number 2 is you can also calculate something which is known as net profit ratio. And how do you calculate net profit ratio? EAT divided by sales into 100. So you calculate the EAT and do the same thing as in case of gross profit. So you compare your net profit ratio with your net profit ratio of last year or with your competitor or with the budget that you may have prepared. मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो कसम खा के जाएं, कसम खा के जाएं कि आज सोने से पहले मेरी कंपनी में बजटिंग का प्लान में इम्प्लीमेंट बनाए बिना सोने वाला नहीं. And I can tell you that will make tremendous difference to your business. जिसको हम बोलते हैं ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट. बजटिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अगर देखो बहुत सिंपल है, मैं कोई ये ना बहुत हाई फंडा बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आपके पास में आपका बजट नहीं है इसका मतलब है कि आपको आपके बिजनेस में क्या करना है वो आपको मालूम नहीं है. और समझ के लीजिए, अगर आपको आपके बिजनेस में क्या करना है ये मालूम नहीं है तो फिर आप अपने लोगों को क्या बताएंगे? So you will not guide them. Unintentionally you will misguide them. So मैं strongly, seriously, I would like जो भी हैं सब लोग कसम खा के जाएं कि आज सोने से पहले, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे मैसेज करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें और मुझे डालें कि जैसा कि आपने हमसे कसम ली थी हमने वैसा किया, मेरा प्लान तैयार है और मैं कल से इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ. Your not only your business will grow multifold, your life will also become much comfortable. Okay, so this is your profitability. Then you do the liquidity ratio. Sir, budgeting is sales target. Wait, I'll just tell you. Budgeting का मतलब sales target, not only sales target, everything. Budgeting का मतलब please pay attention. Budgeting का मतलब ये है कि 12 महीने में हर महीने मेरा सेल्स कितना होगा, हर महीने मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, हर महीने मेरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, हर महीने मेरी सैलरी कितनी होगी, हर महीने मेरी वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, हर महीने मेरा प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट कितना होगा, हर महीने मेरे ओवरहेड्स कितने होंगे. एवरीथिंग. एंड प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. पहली बार में टाइम लगेगा लेकिन एक बार चालू हो गया तो फिर आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं. जस्ट नीड टू ट्रेन योर पीपल. एंड वो आपने प्लान बना लिया देन यू कैन कंपेयर ना. आपने मई का प्लान बनाया, मई का प्लान है तो मई जब खत्म होगा तो बुला के लो कि मई का टारगेट क्या था, एक्चुअल क्या है, कंपेयर करके लो. वहां से आपको जैसे हमने अभी वो एक्सरसाइज किया वहां से आपको मालूम पड़ेगा कहाँ गड़बड़ है. जहाँ गड़बड़ है वहां पकड़ लो, वहां पे कंट्रोल करो. तो आपको हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है टू बी गुड इन फाइनेंस. आपको स्टैनफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है, आपको IIM जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिंपल टेक्निक्स हैं जो सुबह से लेके आपके साथ में डिस्कस करी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है. एंड बिलीव मी, आई एम श्योर आप सभी ने अच्छे खासे नोट बनाए हैं. घर जब जाएंगे ना तो उनको थोड़ा रफ कर लीजिए, थोड़ा रफ कर लीजिए और एक पेज पे लिख लीजिए ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था. एक 10 एक चीज है जो मैंने आपको मेन बताई है. वो 10 चीजों को एक कागज पे आप लिख के लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसको अच्छा खासा टाइप करके उस पेपर को आप बिलीव मी रोजाना जब आप ऑफिस पहुंचो उस पेपर को पढ़ लीजिए. ऑफिस छोड़ो वो 10 पॉइंट्स को पढ़ लीजिए. बिलीव मी ये जो ग्रे मैटर है ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट वर्किंग इन इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोज आइडियाज. आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. सच अ पावर ऑफ अवर माइंड. लॉस मेकिंग कंपनी है उसको टेक ओवर करते वक्त ये एक फॉर्मूला कैसे? ओके, लॉस मेकिंग कंपनी है और उसको वेरी गुड क्वेश्चन. प्लीज जॉइन योर हैंड्स. आई थिंक वेरी नाइस, वेरी गुड. देखो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको आप ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? फैंटास्टिक. ये कंपनी को टेक ओवर करने के बाद इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट में कहां लेके जा सकता हूं, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट में कहां लेके जा सकता हूं. चेक दैट पोटेंशियल.
इफ यू सी दैट पोटेंशियल, अगर आपको लगता है वो पोटेंशियल है, देन यू परचेज इट। अगर आपको लगता है वो पोटेंशियल नहीं है, परचेस जिसके गले का फंदा है उधर ही पड़ा रहने दो उसको। परचेस वैल्यू कैसे डिसाइड? हाँ, तो परचेज वैल्यू डिसाइड करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक वैल्यूअर के पास जाना पड़ेगा, और एक वैल्यूअर जो मैं जानता हूँ उसको आपको मैं नंबर दे दूंगा, उसका नाम प्रमोद जैन है। वो आपके सिस्टमेटिकली वैल्यूएशन करके देगा, इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वो पूरा बताएगा आपको कि इस कंपनी का कितना वैल्यू, कितने में आप खरीद सकते हैं। पर वो ये जो फैक्टर आप स्टिल यू कैन यूज इट, बिकॉज लॉस मेकिंग है तो आपको सब देखना, एसेट्स लायबिलिटीज क्या है, क्या पोटेंशियल है, जितना आप दे रहे हो उतना फ्यूचर में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? अगर वो मिलने वाला है तो सो आप जो बोले इनको कि वैल्यूएशन करना पड़ेगा, लेकिन वैल्यूएशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं? ऑल 97603456। So इसमें ये जो उनका कंसल्टेंसी का बात है। नो एक्चुअली क्या है, सी वैल्यूएशन इज या आईपी जो बोलते हैं हम लोग कंपनी की, आईपी क्रिएट होती है, सो हाउ टू कैलकुलेट दैट आईपी वैल्यू? हाँ तो वो इसके लिए नंबर, वही नंबर नहीं कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोल फ्री नंबर है ये, टोल फ्री फोन करने तक बाद में पैसा लगने शुरू हो जाता है। जस्ट एक क्लू दे दो। वी आर नॉट अ authorized valuer, but we want to listen from your side. So एक okay, I'll come to you. Yes. जब अगर लॉस मेकिंग कंपनी आप खरीद रहे हैं तो आप असेट्स को अगर वैल्यूएशन करके आप ले लेते हैं, Correct. बराबर, ठीक है। इसमें अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो उसमें एबिटा का क्या 3 टाइम्स मल्टीपल देते क्या है? 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता लॉस है। मेकिंग खरीद रहे हैं तो 3 साल आपका ये होना चाहिए ROI 3 इयर्स में। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। Amazon और Flipkart का example। वैल्यूएशन में देखो क्या है, वैल्यूएशन इज अ साइंस एंड वैल्यूएशन इज एन आर्ट। फेसबुक और व्हाट्सएप। आप में से कुछ लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। Two of the very important reforms. Somebody was asking me, that's why I think all of you should know. Number one, there's something called insolvency and bankruptcy code. एक ये नया लॉ आया है। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई कंपनी NPA है, so then you know this company has to go to NCLT. Second is valuation, registered valuer. तो अभी मैं just to cut the answer short, valuation is a science, is an art, and valuation cannot be answered just in few minutes because there are many things that you need to take into account. So there's an income approach, there's an asset approach, there's a cost approach, there's a discounting cash flow method, there's a multiple, market multiple method. So many things you need to take into account. But the crux, all of you, the crux of the valuation is very simple. The crux of the valuation is very simple. The crux is, अगर मैं ये कंपनी को खरीदता हूँ, तो अगले 10 सालों में या 5 सालों में मेरे इस कंपनी से मुझे क्या मिलने वाला है। आर यू विद मी? समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मैं ये कंपनी खरीद, लॉस मेकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, कैसी भी रहने दो, अगर ये कंपनी को मैं खरीदता हूँ तो अगले 5-7 साल में इस कंपनी से मुझे क्या मिलने वाला है। इफ दैट टोटल, प्लीज पे अटेंशन, इफ दैट टोटल कम्स 50 लाख, will you pay 60 lakhs for this company? No. All of you? No. All of you? No. Can't hear your answer. All of you? No. Simple. So what is the maximum that you will pay for this company? 35 lakh, 40 lakh. Why? Because आपका टाइम लगा रहे हो तो कुछ तो आपको रिटर्न में मिलना चाहिए. So this is how the valuation is done. The only thing is ये 50 लाख का फिगर कैसे arrive हो? For that you have to go to the professional. He will tell you how it is, and then you decide the price. So I'm doing valuation as a registered valuer. I'm a registered member with IPBI. I'm doing valuation for a lot of companies. I'm also an insolvency professional. So I'm also helping companies in insolvency matters across the country. So agar any of those requirements, if you come across, I will be happy to handle it. See, net profit ratio. So net profit ratio, it should keep on increasing. 100 तो नहीं होगा सर, क्योंकि it may be 10%, 15%, 20%. जितना ज़्यादा उतना अच्छा है. नहीं, more than 100. That was the increase. Increase. That was the increase.
That was the increase, not. So generally, अगर net profit 15% है, तो I think it's a good situation. इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए. Okay. Let's now come to the next point, and that is liquidity. Okay, what is liquidity? कैश इन हैंड. Cash in hand, correct. So liquidity from the point of view of financial management का मतलब है your ability to discharge all your short-term obligations. What is liquidity? मतलब आपकी capability, तो जो आपके short-term loans हैं, you should be able to pay them. कैसे calculate करेंगे liquidity ratio? And with this, we will come to the close of the session, and we'll take few questions, and by 4:30 I think we'll wind up. So liquidity कैसे calculate करते हैं? Liquidity calculate करते हैं current assets divided by current liabilities. What are the current assets? Everybody, give me some examples of current assets. It's a said land. Current assets. Debtors, receivable, advance, Debtors, receivables, bank balance, cash balance. bank balance, cash balance. Okay, those are your current assets. Current assets यानी कि Easily can be liquidated. very good, easily liquidable. That's current asset. So inventory is a current asset. Receivable is a current asset. Bank balance is a current asset. And current liability, creditors, right? Creditors. Now remember, I'm discussing with you in next few minutes something very subtle, and I want you to be fully attentive. So current, अब मेरे कंपनी का current assets, let's say for example, are 200. So current assets में WIP क्या है? Yes, inventory will come. Inventory will include fixed goods, finished goods, WIP, raw material, everything. So my current assets are 200. That means my inventory, receivables, cash and bank balance all put together is 200. And my current liabilities are 150. So how much is my current ratio? How much is my current ratio? 200 divided by 150. Calculator use करो please. Tell me. No, should be more. It should be 1.33. 1.33. Good. 1.33. Clear to everybody? Sir, does it make sense to you? Okay. 1.33. So ये इसका मतलब क्या हो गया? मेरा करंट रेशियो 1.33 है. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जितना मुझे चुकाना है, जितना मुझे पे करना है, उससे 1.33 टाइम्स मेरे पास में है. गुड साइन और बैड साइन? गुड साइन. ओके, गुड. अब मेरा सवाल आप सभी से ये है, और मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर थोड़ा सा सोच के दें. सर इसमें CL में liabilities में सिर्फ creditors है और Creditors, provisions, other current liabilities. loans नहीं है. CC आ जाएगी. CC will come. So नहीं, CC loan. नहीं, see देखो, interest is an expense. Loan is a liability. So only loan will come. The current asset का मतलब है, all of you please pay attention. Current assets का मतलब है assets which are going to get converted into cash within a period of, everybody, within a period of 1 year. तो 12 महीने के अंदर जो assets कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट है. इन्वेंट्री, इज इट अ करंट एसेट? रिसीवेबल्स, इज इट अ करंट एसेट? बैंक बैलेंस, इज इट अ करंट एसेट? वो तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, सो इट इज आल्सो अ करंट एसेट. करंट लायबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशंस ऑफ योर बिजनेस व्हिच आर टू बी पेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. सो जो आपने माल उधारी में खरीदा है, इज इट योर करंट लायबिलिटी? जो सैलरी आपको अगले महीने में चुकानी है, ये महीने की, इज इट योर करंट लायबिलिटी? So that's the difference between the current assets and the current liabilities. Now, my question to you is 2019 and 2018. I am looking current assets of your company. आपकी कंपनी का current assets मैंने कैलकुलेट किया और मैंने देखा
कि 2018 में आपका करंट रेशो था 1.50 और 2019 में ये रह गया 1.20. प्लीज टेल मी, गुड साइन और बैड साइन? बट कंपेयरिंग आपकी कंपनी का करंट रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, आपकी बैलेंस शीट में से मैंने करंट एसेट्स का फिगर निकाला, करंट लायबिलिटीज का फिगर निकाला, और मैंने देखा कि 2018 में आपकी करंट एसेट्स का जो रेशियो इट वाज 1.5. सो दैट मींस योर करंट एसेट्स वर 1.5 टाइम्स ऑफ योर करंट लायबिलिटीज. और 2018-19 में ये फिगर घट के 1.2 रह गया. गुड साइन और बैड साइन? Alright, so let's do one thing. Let me give you time of 2.5 minutes. So 2.5 मिनट अपने ग्रुप में डिस्कस करिए और मालूम करिए एक दूसरे से कि गुड साइन है कि बैड साइन है. अगर आपको लगता है कि गुड साइन है, प्लीज पे अटेंशन. अगर आपको लगता है गुड साइन है और आपके ग्रुप के मेंबर्स को लगता है बैड साइन है, तो प्लीज कन्विंस देम और गेट कन्विंस्ड एंड होल्ड ऑन. Unless and until I get the same answer from everyone in this room, we will not close this session. So we'll go on until you come to the consensus. 2.5 minutes, the time starts now.